दोस्तों, बांग्लादेशी हिंदुओं के नाम पे जो सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, आपको ये जानकर हैरत होगी कि इनमें से अक्सर जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो इंडिया से ऑपरेट किए जाते हैं और इनके अंदर जो कंटेंट शेयर किया जाता है वो भी इंडियन कंटेंट होता है, यानी कि कारस्तानियाँ इंडिया से होती हैं, नाम बांग्लादेशी हिंदुओं का इस्तेमाल हो रहा होता है। अच्छा, इन दिनों एक ऐसी ही क्लिप वायरल है, कंटेंट वायरल है इस तरह के पेजेस के ऊपर भी और इंडियन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी। ये क्लिप है असल में एक बांग्लादेशी एक्सपर्ट का, जो कि बात कर रहे हैं इंडिया के 7 सिस्टर स्टेट्स के हवाले से। अब वो क्या बात कर रहे हैं इस पे मैं थोड़ी देर में आपके साथ ये क्लिप शेयर करता हूं, लेकिन पहले ज़रा ये पोस्ट देख लीजिए जो कि एक ऐसे ही मशकूक किस्म के प्लेटफॉर्म से शेयर की गई है कि अ लाइव टीवी शो इज डिस्कसिंग हाउ टू डिवाइड इंडियाज 7 सिस्टर्स by making friends with China and Pakistan, हैशटैग बैन जमात टेररिस्ट। ये हैशटैग उन्होंने लगाया है, बैन जमात टेररिस्ट, और उसके नीचे फिर उन्होंने ये क्लिप शेयर की है। पहले ज़रा ये देखिए, उसके बाद इस पॉसिबिलिटी पे बात करते हैं कि क्या इंडिया का जो 7 सिस्टर स्टेट्स का इलाका है ये चाइना की इंटरवेंशन के बिना क्या अलग मुल्क में कन्वर्ट हो सकता है या ये अलग हो सकता है इंडिया से या नहीं हो सकता, इस पे बात करते हैं। দালালগুলো এত খারাপ, এই দালালগুলো খায় এখানে কিন্তু কথা বলে ইন্ডিয়ান। এটাই হলো সবচেয়ে দুঃখজনক। হাসিনার মতো কুৎসিত নিকৃষ্ট মানের একটা স্বৈর শাসককে সারা তৈরি করেছে এবং আশ্রয় দিয়েছে। ইন্ডিয়া নাকি আমাদের বন্ধু। ইন্ডিয়া আবার প্রতিবেশী বদলানো যায় না, আমি একমত না। প্রতিবেশী বদলানো যায়, প্রতিবেশী অনেক কিছু করা যায়, বদলানো যায়। প্রতিবেশী ইন্ডিয়া বদলাইছে না, প্রতিবেশী বদলাইছে না, আগে ছিল পূর্ব পাকিস্তান, এটা বাংলাদেশ হইছে না। তা আমরাও তো অনেক কিছু নাম চেঞ্জ করে বদলাইতে পারি। আমাদের তো 7টা প্রতিবেশী বানাইতে পারি নতুন করে, অসুবিধা কোথায়? 7টা প্রতিবেশীর অবকাশ তো আমাদের আছে। আজকে যদি বলেন যে আপনি এখন একেবারে সামরিক যুদ্ধের কথা বলছেন, একটা যুদ্ধও লাগবে না, খালি আমরা একটু ইয়েস করলেই হয় গোপনে গোপনে। হ্যাঁ, কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ দালাল। আপনি বলছেন তো প্রকাশ্যে না না, শোনেন না, বাংলাদেশের মানুষ তো দালাল বেশি। মানে 10 ট্রাক অস্ত্র ইন্ডিয়াতে এরকম হাজার হাজার ট্রাক যাইতেছে, তারা পাঠাইতেছে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে, আর তারা তো ধরে না। কিন্তু আমাদের দালালগুলো এত খারাপ, এই দালালগুলো খায় এখানে কিন্তু কথা বলে ইন্ডিয়ান। এটাই হলো সবচেয়ে দুঃখজনক। তারা দেখতে চায় না, কূটনীতি বলে, তারা আক্রমণ করে আর আমরা বলি কূটনীতি। আরে আমাদের আর্মি কি নাই? আমরা কি প্রতিবাদ জানাতে পারি না? আমাদের ছাত্র জনতা আছে না, নূরের মতো বিপ্লবী লোকেরা আছে না, কবি আব্দুল হাই সিকদারের মতো কবি আছে না, রাজনীতিবিদ আছে না, অধ্যাপক আছে না, এরকম বিপ্লবী লোকের অভাব নাই। ইন্ডিয়ার এরা প্রতি মুহূর্তে আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতেছে, আমরা বলতেছি এটা কূটনীতি দিয়ে থামাবো। কিচ্ছু লাগবে না, চুপ করে বসে থাকেন। পাকিস্তানের সাথে আপনি সুসম্পর্ক স্থাপন করেন, কেউ চিরস্থায়ী বন্ধু বা শত্রু নয়। পাকিস্তানের সাথে সুসম্পর্ক করলে আমাদের লস নাই, লাভ ছাড়া। তুরস্কের সাথে সুসম্পর্ক করেন, চায়নার সাথে সুসম্পর্ক করেন। ইন্ডিয়া দাদা 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 কইরা তখন আমাদেরকে বলতে থাকবে, দাদা বলবে না, ভাই ভাই, তখন ভাই ভাই বলে আমাদের পায়ে পায়ে এসে ধরবে। এই কারণে আমি বলছি, আরেকজনে বলে সার্ক, আরে সার্ক তো নষ্ট করছে ইন্ডিয়া। জিয়াউর রহমানের সেই স্বপ্ন যদি বাস্তবায়িত হইতো, কেন যে সমতার ভিত্তিতে আমরা কূটনীতি প্রয়োগ করব, কিন্তু ইন্ডিয়া সেটা মানতে রাজি না। আজকে ইন্ডিয়ার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে যায়, অনেকে গদগদ করে, তাদের সাম্প্রদায়িকতা দেখে না, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এই বুদ্ধিজীবীরা কথা বলে না। এই ইন্ডিয়া তাদের কাকে আশ্রয় দিয়েছে? হাসিনার মতো কুৎসিত নিকৃষ্ট মানের একটা স্বৈর শাসককে সারা তৈরি করেছে এবং আশ্রয় দিয়েছে। শুধু তাকে না, তার দলবল সহ তারা কোন ভাবে তার সেই দেশে থাকে। তারা যদি আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র হইতো তাইলে বাংলাদেশের শত্রুকে কি তারা আশ্রয় দিত? আচ্ছা, তারপরে আসেন, আজকে ইন্ডিয়াতে একেবারে ইন্ডিয়ার পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা কূটনীতিক ভাষা যেটা ব্যবহার করে, ওইটা তো কিন্তু তারা বন্ধুত্বের পরিচয় দিচ্ছে না। আপনি যদি দেখেন, এই পরিচয় যদি দিত তাইলে তো এত দূর আগায় যেত না। ইন্ডিয়ার মানুষ উস্কানি পায় কোথেকে? সরকারের কাছ থেকে, তাদের সরকারের মাধ্যমে তারা উস্কানি পায়। এবং আরেকটা জিনিস দেখেন, এই হাসিনার আমলে আওয়ামী লীগ কি কোন বাংলাদেশি দল? আপনি বলবেন বাংলাদেশের ছাত্রলীগ এই ইয়েও এক সময় করতো, নূর ভাই এক সময় করতেন। আর ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা হয়েছে 4 জানুয়ারি 1948 সালে। কারা প্রতিষ্ঠিত করছে? আপনি খোঁজ নিয়ে দেখেন কারা প্রতিষ্ঠিত করছে, তখনই বুঝে ফেলবেন। আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা করছে ইন্ডিয়ার অর্থায়নে, এবং তারা এই যে 16 বছরে দেশটাকে শূন্য করে দিয়েছেন। ডক্টর ইউনূস তো কালকেই বলছেন দেশটাকে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে, তারা ধ্বংস করে দিয়েছে। কিন্তু ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কিছু দালাল গজে উঠছে, তারা কথা বলে
দেশের বিরুদ্ধে কথা বলে, দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে কথা বলে, লজ্জা হয় না তারা? এই ইয়ের বিরুদ্ধে কি একটা কথা কোনোদিন বলেছে? হাসিনার যে অপকর্ম তার কোথায় ছিল? একটা প্রতিবাদ করেছে। এই যে আপনার পিছনের ছবি দেখেন, এখানে দালালদের একজনকে দেখতে পাবেন না আপনারা। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें इन्होंने की हैं, लेकिन मिलियन डॉलर क्वेश्चन यही है कि क्या 7 रियासतें इंडिया की अलग हो सकती हैं? देखें, दो मुल्कों के दरमियान जब भी लड़ाइयाँ होती हैं ना, तो मिलिट्री स्ट्रेंथ जो होती है ना, सिर्फ वही फैक्टर नहीं होता कंसीडर करने के लिए, ग्राउंड रियलिटीज़ भी एक फैक्टर होता है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर आप देखिए, अमेरिका और वियतनाम के दरमियान कोई मुकाबला ही नहीं था। अमेरिका बहुत बड़ी फोर्स थी, सुपर पावर था, वियतनाम से हार गया वहाँ पे। वजह क्या थी? ऑन पेपर कोई मुकाबला नहीं था, अमेरिका बहुत बड़ी फोर्स था, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ ये थी कि टेरेन को वियतनामीज़ बेहतर तरीके से समझते थे और वियतनामीज़ जो थे ग्राउंड रियलिटीज़ उनके हक में थी। इसी तरह से अफगानिस्तान के अंदर हुआ। तालिबान क्या थे अमेरिकन्स के सामने? अमेरिकन्स बहुत बड़ी फोर्स है, सुपर पावर दुनिया की। तालिबान मिलिटरली उनके सामने कहीं नहीं टिकते थे, लेकिन जीत गए ना, जीत गए, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ जो थी वो उनके हक में थी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान जो कंपैरिजन की जाती है कि इंडिया इतनी बड़ी फोर्स है और बांग्लादेश छोटी सी फोर्स है उसके सामने, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं बांग्लादेश के रीजन के अंदर, उसको बांग्लादेशी जानते हैं, इंडिया नहीं जानता। वो अपनी टेरेन को जानते हैं, अपनी ज़मीन को जानते हैं, इंडियंस नहीं जानते, उनकी टेरेन को नहीं जानते। वो एलियन लैंड है उनके लिए असल में। बाहर से आप देखते रहे भली उसको, अगर घुसेंगे अंदर तो पता चलेगा कि वहाँ पर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस मौजूद हैं ग्राउंड के अंदर ना। जहाँ तक कि इस बात का ताल्लुक है 7 सिस्टर स्टेट्स के अलग होने का, तो देखिए सोवियत यूनियन एक बड़ा मिलिटरली मजबूत इलाका था, बड़ा मजबूत एक मुल्क रहा है, सुपर पावर रहा है अपने ज़माने का, लेकिन कितने टुकड़े हुए उनके अंदर से ही हुए ना। न्यूक्लियर पावर तो वो भी थे, एटम बम तो था उनके पास, लेकिन चलाने की नौबत ही नहीं आई, एटम बम चलाने की ज़रूरत ही नहीं पेश आई, अंदर ही लड़ाइयाँ चल रही थी। म्यांमार आपकी आंखों के सामने एक बड़ा मुल्क है, इनकी मिलिट्री भी काफ़ी स्ट्रांग रही है, लेकिन आपकी आंखों के सामने ये मुल्क एवापोरेट हो रहा है, तहलील हो रहा है हवा में। इस मुल्क के अंदर कई सारे मुल्क बन चुके हैं। क्या किसी ने बाहर से आके हमला किया है? नहीं, किसी ने इनके ऊपर बाहर से आके हमला नहीं किया, ये खुद ही तहलील हो रहे हैं। तो यही इंग्रेडिएंट्स असल में इंडिया के 7 सिस्टर स्टेट्स के अंदर मौजूद हैं। ये तमाम चीज़ें जो वहाँ हो रही हैं म्यांमार के अंदर, वो इंडिया के इन इलाकों के अंदर हो सकती हैं। वही लोग हैं, वही ग्रुप्स हैं, वही वहाँ पर आपको डेमोग्राफी भी तकरीबन नज़र आती है कई सारे स्टेट्स के अंदर, और ऑन टॉप ऑफ दैट इंटरनेशनल ताकतों का भी इनको समर्थन हासिल है। कई सारे इनके जो ग्रुप्स हैं वो मंजूर नज़र हैं, इंटरनेशनल फोर्सेस के मंजूर नज़र है, उनका समर्थन भी इनको हासिल है। इन इलाकों के अंदर सिर्फ आपको चाइनीज़ हथियार नज़र नहीं आते, जर्मन और वेस्टर्न हथियार भी नज़र आते हैं। इनकी जो इंसर्जेंसी वहाँ पर चल रही है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, वहाँ पर जर्मन और वेस्टर्न हथियार भी मौजूद हैं। तो अगर यहाँ पर इसी तरह की सिविल वॉर भड़काई जाती है जिस तरह की म्यांमार के अंदर चल रही है, तो इस इलाके का इंडिया के साथ इंटैक्ट रहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। रियासत की रिट एक मरतबा जब ख़त्म हो जाएगी ना, स्टेट की रिट जो होती है, तो फिर मेरे ख्याल से इस रीजन का इंडिया के साथ इंटैक्ट रहना मुमकिन नहीं रहेगा। यहाँ पर तो भी आपने BSF तो पुलिस और पता नहीं क्या क्या डाल रखा है, लेकिन अगर ये इंस्टीट्यूशन ही धपड़दूस हो जाए यहाँ पर इन इलाकों के अंदर, कौन धपड़दूस करेगा? यहाँ के लोग यहाँ के। अगर करोड़ों की तादाद में ये लोग इन इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो कहाँ से टिक पाएंगे ये इलाके इंडिया के साथ? लिहाजा कोई ज़्यादा अचंभे की बात नहीं है कि अगर कोई इन इलाकों के सेपरेशन के हवाले से बात करता है तो उसको ज़्यादा हैरत अंगेज तौर पर देखने की ज़रूरत नहीं है। ये थियोरेटिकली आप देखें तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। किसी बाहर के मुल्क की इंटरवेंशन के बिना, यानी डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन के बिना भी ये इलाका इंडिया से अलग हो सकता है।